الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ یاسینیہ سراج العلوم میں کے جلسے نثار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. یہ جلسہ کل سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء نے خطاب کیا. حضرت مولانا محمود نبی صاحب بھی تشریف لائے، مولانا حکیم الدین صاحب بھی، حضرت مولانا حامد حسن صاحب، بڑے بڑے علماء کو جوڑا گیا ہے. اللہ کا لطف و کرم ہے کہ جن علماء کی زیارت کے لیے آپ سفر کرتے، لمبا سفر کرتے، پھر بھی اللہ کی زیارت ہوتی نہ ہوتی، آج آپ کی بستی میں سارے کے سارے لوگ آ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کے آنے کو قبول کرے. آمین آمین. ماشاءاللہ یہ مدرسہ بڑی عظیم الشان جمعہ بن جاتے ہیں علاقے کے مختلف مدارس میں، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. آج بستی میں جنازہ ہے یا کسی کا انتقال یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں. آپ حضرات کے اس مدرسے سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرات کی محبت کو قبول فرمائے. ابھی مدرسے کا کارنامہ سامنے آئے گا. ظہر کے بعد 27 بچے جو مدرسے سے حافظ ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے اور ماشاءاللہ اس مدرسے کی محنت کی برکت سے، اساتذہ کی محنت کی برکت سے، محتمم صاحب کی محنت کی برکت سے، کارکنان اور کمیٹی کی ممبران کی توجہ کی وجہ سے ماشاءاللہ ایک سال کے کارکردگی کے 27 بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں. میں ایک دفعہ گیا تھا، ایک جگہ چھپروں کا مدرسہ تھا، گھاس پھوس کا مدرسہ تھا، غریب لوگ تھے، اور مدرسے میں 4 بچے حافظ ہوئے تھے. محتمم صاحب اتنا خوش تھے، خوشی سے بھولے نہیں سنا رہے تھے. جب رپورٹ سنانے کا وقت ہوا تو محتمم صاحب رپورٹ لے کر کھڑے ہوئے اور
या आलिम हो गया, हम कब्र में सोए रहेंगे और बेटा हमारे लिए कुरान पढ़ेगा, हमारे कब्र में दर्जात बढ़ते चला जाएगा, नूर बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, जितने भी लोग हैं यहाँ चाहे कहीं भी, जब दुनिया में पैदा हो गए तो एक दिन उनको कब्र में जाना है, हर एक को जाना। आज हम खास से यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक दिन हमारे जनाजे का ऐलान होगा और हमको कब्र में जाना होगा। कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हदीस में सुलेखा अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर आदमी को मौत का मजा चखना है, मौत के महले से गुजरना है। मुझे एक तजुर्बा याद आया, एक फकीर था, उसकी पगड़ी लेकर कोई भाग गया चोर शहर की तरफ, और कब्रिस्तान उधर था। फकीर जाकर कब्रिस्तान के गेट पर बैठ गया। किसी ने कहा, फकीर तुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन है, तेरी पगड़ी लेकर चोर इधर भागा और तू कब्रिस्तान के गेट पर बैठ गया है यहाँ। तो फकीर बड़ी सादगी से कहता, कहीं जाए यही आएगा, कहीं जाए यही आएगा। तो दोस्तों, हम भी आपसे ये कहते हैं, आप हवाई जहाज पर हो, व्हाइट हाउस में रहो, ताजमहल में रहो, लेकिन एक भी तो कब्र में जाना पड़ेगा कि नहीं? कहने वाले ने कहा है, चले जाओ ये खाली हाथ, चले जाओ
अच्छी हम देख कर कराइएगा और शाम को जब ऐलान होगा तो दीजिएगा। याद रखो हमारा जो पैसा है हम ये तो नहीं सकते हैं, खत्म हो जाएगा। माल ऐसा है जो सुबह आता है शाम में आता है, लेकिन अगर 3% से किया अभी देखोगे आइएगा आप लोग 27 बच्चों की पढ़ी मिलेगी। ये बच्चे जिन लोगों का पैसा खा खा के पढ़ेंगे इंशाल्लाह सबके सब पे जाएगा। आपने गला दिया, आपने पैसा किया, आपने कपड़ा दिया और इन सब चीजों को इस्तेमाल करके बच्चे हासिल हुए हैं, आलिम हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे पास इसका सवाब आप कब्र में रोशनी रहेगी, आपकी कब्र में नूरानी रहेगी। और ये मदरसे माशाअल्लाह कितनी अजीब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कितनी अजीब। बताइए लॉकडाउन था, परेशानियां थी, लेकिन 27 बच्चे हासिल हो गए। लॉकडाउन में कुछ नहीं बिगाड़ा, दुनिया का काम रुक गया, तजारत रुक गई, कारोबार रुक गया, हर कोई मुल्क पीछे, बड़े-बड़े मुल्क ऑस्ट्रेलिया पीछे चला गया, अमेरिका पीछे चला गया, हिंदुस्तान पीछे चला गया, चीन पीछे चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे आगे ही बढ़े, मदरसे आगे बढ़े, मदरसे पीछे नहीं गए, मदरसे बढ़ते ही रहे। और माशाअल्लाह बहुत से मदरसों में तो अगर मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले आ गए, तो मस्जिदों में शुरू कर दिया, घरों में शुरू कर दिया। और जानते हैं बाद बच्चे लॉकडाउन जब से लगा है तो खत्म हुआ इसी बीच में हासिल हो गए। लॉकडाउन ही हासिल, मैंने उसका नाम रखा लॉकडाउन है, सब कुछ रुका लेकिन दीन का काम नहीं रुका। याद रखो हमारा दीन ऐसा दीन है जो रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। हमारे दीन के बारे में हमारे हुजूर ने दुआ किया था कि अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत तक कायम रखे, और हुजूर की दुआ कबूल हो गई है। तो दोस्तों याद रखो, तुम याद रखो दुनिया में कोई रहे या ना रहे, लेकिन मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेंगे। हुजूर की दुआ है कैसे बाकी रहेंगे, दारुल उलूम देवबंद बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन मदरसों से जुड़ने और मोहब्बत करने की तौफीक करेंगे। और ये बताइए कि कैसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मामूली तनख्वाह में 5,000 7,000 10,000 तनख्वाह, लेकिन अजीम शान दुनिया की इस्लामी हुकूमतें भी दीन की खिदमत नहीं कर रही है, जो ये मदारिस कर रहे हैं। सऊदी अरब, शाम, यमन, इराक जो बड़े-बड़े मुल्क हैं वो हुकूमतें वो काम नहीं कर रहे, जो ये मदरसे कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन मदरसों को खास तौर से आपके बाबूवाली का मदरसा माशाअल्लाह कितनी खिदमत अंजाम दे रहा है। चप्पे चप्पे में आलिम हाफिज भर दिए। इसी तरह से उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया में ऐसा मदरसा सऊदी अरब में भी नहीं है, ऐसा मदरसा इराक में भी नहीं, शाम में नहीं, यमन में भी नहीं, कहीं नहीं है जैसे दारुल देवबंद है। इतनी अजीम शान खिदमत अंजाम दे रहा है। 1700 आलिम हर साल पैदा करता है। कितने आलिम? 70। और एक आलिम वहां से फारिग होकर आता किसी बस्ती में रह जाता, पूरी बस्ती में दीनी पैदा कर देता, दीनी माहौल पैदा कर देता, दीन की खिदमत का असीम सिलसिला शुरू कर देता। अल्लाह ताला इन मदरसों को जो है तमाम को पता नसीब फरमाए और हम मुसलमान